The Sound Machine by Roald Dahl. It was a warm summer evening, and Klausner walked through the front gate and around the side of the house and into the garden at the back. He went on down the garden until he came to a wooden shed, and he unlocked the door, went inside, and closed the door behind him. तो वार्म समर इवनिंग था. क्लाउसर हम लोग का जो इस चैप्टर का प्रोटैगनिस्ट है, द सेंट्रल कैरेक्टर, वो अपने घर से निकला, गॉट आउट ऑफ द फ्रंट गेट, पीछे से घूम के आया एंड अपने बैकयार्ड में आ गया. ठीक है, वहां पे देयर वाज अ वुडन शेड. ही अनलॉक द डोर और उसके अंदर वो घुस गया. द इंटीरियर ऑफ द शेड वाज एन अनपेंटेड रूम. Against one wall on the left, there was a long wooden workbench, and on it, among a littering of wires and batteries and small sharp tools, there stood a black box about 3 feet long, the shape of a child's coffin. तो वहां पे एक अनपेंटेड रूम था और एक दीवार में वहां पे टिका हुआ था. देयर वाज अ वुडन वर्क बेंच. रूम के अंदर कोई पेंट नहीं था, वर्क बेंच था, एंड उसके ऊपर बहुत सारा वायर्स, बैटरीज, शार्प टूल्स, ये सब था. और उसके साथ साथ एक ब्लैक बॉक्स, एक बड़ा सा वहां पे एक ब्लैक बॉक्स था और उसका शेप, इट लुक लाइक अ चाइल्ड्स कॉफिन. Klausner moved across the room to the box. The top of the box was open, and he bent down and began to poke and peer inside it, among a mass of different colored wires and silver tubes. He picked up a piece of paper that lay beside the box, studied it carefully, put it down, peered inside the box, and started running his fingers along the wires, tugging gently at them to test the connections. Glancing back at the paper, then into the box, then again at the paper, checking each wire. He did this for perhaps an hour. So Klausner room के अंदर गया. He went to the box. ठीक है, बॉक्स इट वाज ओपन. ठीक है, और वो उसमें झुक के ही बिगैन टू हियर एंड पोक इनसाइड ऑफ इट. ठीक है, उसमें बहुत सारे कलरफुल वायर्स थे, बहुत सारे डिफरेंट कॉम्प्लिकेटेड क्या बोले मशीन पार्ट्स थे. ठीक है, वो एक पेपर उठाया, देखा कि वहां पे क्या कैसे करके डायग्राम बनाया हुआ है, सब कुछ ठीक है कि नहीं है. ही स्टार्टेड टू बिगिन पुलिंग द वायर्स, देखा कि सब कनेक्शन टाइटली लगाया हुआ है या नहीं. ठीक है, एक बार पेपर देख रहा है, एक बार बॉक्स देख रहा है, पेपर देख रहा है, बॉक्स देख रहा है. ऐसे करके ही कंटिन्यूड टू चेक इफ द मशीन वाज रेडी फॉर एन आवर. 1 घंटा तक वो ऐसे करके काम किया. Then he put a hand around to the front of the box where there were 3 dials, and he began to twiddle them, watching at the same time the movement of the mechanism inside the box. All the while he kept speaking softly to himself, nodding his head, smiling sometimes, his hands always moving, the fingers moving swiftly, deftly inside the box, his mouth twisting into curious shapes when a thing was delicate or difficult to do, saying yes, yes, and now this one, yes, yes, but is it this, but is this right? Is it where is it? Is it where's my diagram? तो वो सोचो मशीन ऐसे करके रखा हुआ है. He put his hand in front of the box and started to twiddle the dials. छोटे छोटे knobs है वहां पे. ठीक है, और उसको घुमाने लग गया. And he began to observe the movement inside the mechanism. मशीन के अंदर जो पार्ट जिस तरीके से बिहेव कर रहा था उसको देखने लग गया. ठीक है, उसका फिंगर्स जो है आराम से मूव कर रहा है. उसका there is a curious expression on his face. ठीक है, क्यूरियस शेप्स में बता ऐसे करके एक्सप्रेशन देके वो काम कर रहा है. He is very concentrated on the machine. ठीक है, तो वो अपने आप से कमेंट कर रहा है कि यस यस, अच्छा अच्छा, ये ऐसे करके हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है. ठीक है, बट इज दिस राइट? ही इज टॉकिंग टू हिमसेल्फ व्हाइल ही इज वर्किंग ऑन द मशीन. फिर वो डायग्राम देखता है कि डायग्राम में ठीक से बना हुआ है कि नहीं है. Yes, of course. Yes, yes, that's right. And now, good, good, yes, 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 yes. His concentration was intense. His movements were quick. There was an air of urgency about the way he worked.
of breathlessness, of strong suppressed excitement. तो वो अपने आप से कमेंट कर रहा था. He was talking to himself. Yes, yes, good, good. मशीन देख रहा था. He was looking at the diagram. ठीक है. बहुत इंटेंसली वो कॉन्सेंट्रेट कर रहा था. उसका हैंड मूवमेंट बहुत ज्यादा क्विक था. एक अर्जेंसी था उसके अंदर, एक ब्रेथलेसनेस था. There was this suppressed excitement. वो एक्साइटेड था अंदर ही अंदर, लेकिन वो उसको दाब के रोक के वो कम करने का कोशिश कर रहा था. Suddenly he heard the footsteps on the gravel path outside, and he straightened and turned swiftly as the door opened. A tall man came in. It was Scott. It was only Scott the doctor. तो अचानक से वो फुटस्टेप सुनाई दिया उसको ऑन द ग्रेवल पाथ आउटसाइड. ठीक है. वो सीधा हुआ और घूम के देखा. दरवाजा खुला एंड अ टॉल मैन केम इन. इट वाज ओनली स्कॉट. ठीक है. स्कॉट द डॉक्टर था. Well, 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 the doctor said. So this is where you hide yourself in the evenings. तो ये तो सिर्फ स्कॉट आया था. स्कॉट इज अ डॉक्टर. ठीक है. सजेस्टिंग कि क्लाउसन का शायद बीमार था या कुछ था. ठीक है. ऐसे भी थोड़ा सा लग रहा है कि इट वाज स्कॉट. जब बोल रहा है ना कि इट वाज स्कॉट, हम लोग एक फ्रेंड के हिसाब से बोलते हैं ना. तो वो आके बोला कि ओ अच्छा, सो दिस इज वेयर यू हाइड योरसेल्फ इन द इवनिंग्स. ठीक है. तुम यहाँ पे अपने आप को छुपा लेते हो शाम. Hello, Scott, Klausner said. I happened to be passing, the doctor told him. So I dropped in to see how you were. There was no one in the house, so I came on down here. How's that throat of yours been behaving? तो बोला कि मैं यहाँ से गुजर रहा था. I thought I would drop by and check up on you. ठीक है, कि कैसे हो, क्या हो. ठीक है. How's your throat been behaving? तो obviously क्लास्टर का गला में कोई बीमारी था. Perhaps a flu, cold infection, or something like that. It's all right. It's fine. Now I'm here, I might as well have a look at it. तो क्लास में बोलता है कि no, it's okay, it's fine. ठीक है. तो डॉक्टर स्कॉट बोलता है कि मैं तो आ ही गया हूं, I'm here. Let's have a look at it. एक बार चेकअप कर ही लेता हूं. Please don't trouble. I'm quite cured. I'm fine. The doctor began to feel the tension in the room. He looked at the black box on the bench. Then he looked at the man. You've got your hat on, he said. तो बोला कि no, don't have to worry, don't have to be troubled about it. I'm absolutely cured. मैं एकदम ठीक हूं, तुमको उतना ज्यादा परेशानी नहीं लेना पड़ेगा. ठीक है. तो डॉक्टर जो है, डॉक्टर स्कॉट, he started to feel that there is a kind of a tension inside the room. ठीक, ऐसे थोड़ा सा weird behave हो रहा है. He looked at the black box on the bench and he then looked at the man. वो आदमी को देखा. एक बार बॉक्स को देख रहा है, एक बार मैन को देख रहा है, क्लासन को देख रहा है. Then the doctor said, "Kere, you forgotten to remove your hat. तुम अभी भी टोपी पहने हुए inside the room." इतना तक सबको क्लियर? इतना तक क्लियर पक्का? जो लोग ऑनलाइन कर रहे हो, इतना तक क्लियर आप लोगों को? त्रिशान, अक्षत, हार्दिक. चलिए कंटिन्यू करते हैं. Oh, have I? Klausner reached up, removed the hat and put it on the bench. तो क्लासनर अपना टोपी हटाया और बेंच में रखा. The doctor came up closer and bent down to look into the box. What's this? He said, making a radio. तो डॉक्टर पास आया. ठीक है. झुक के देखा कि ये क्या है. What is this? रेडियो बना रहे हो क्या? No, just fooling around. It's got rather complicated looking innards. बोलता है कि नो, मैं तो ऐसे ही मस्ती मजाक कर रहा था. आई एम जस्ट फूलिंग अराउंड. ठीक है, नथिंग सीरियस. तो डॉक्टर बोलता है कि अरे, व्हाट आर यू सेइंग दैट दिस इज नॉट सीरियस? इट हैज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड लुकिंग इनर्ट्स. अंदर का ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है. Yes, Klausner seemed tense and distracted. What is it? The doctor asks. It's rather frightening looking thing, isn't it? तो बोलता है कि क्लासनर को, what is this? ये तो थोड़ा सा डरावना टाइप का चीज है. It's quite frightening looking thing. What is it? क्या बना है? It's just an idea. Yes. It has to do with sound, that's all. Good heavens, man. Don't you get enough of that sort of thing all day in your work? I like sound.
तो क्लाउसनर बोलता है कि इट्स जस्ट एन आइडिया, जस्ट अ स्मॉल आइडिया दैट आई हैड एंड आई एम ट्राइंग टू सी इफ इट्स वर्किंग और नॉट। बोलता है कि यस बोलो। तो बोलता है कि इट हैज टू डू विद साउंड। क्लासमेट्स को बोला कि ये साउंड से रिलेटेड कुछ है। तो डॉक्टर स्कॉट तो उसको जानता है। ये बोलता है कि अरे बाबा रे, इवन एट वर्क यू आर कंटिन्यूअसली वर्किंग विद साउंड। घर में आके भी साउंड को लेके काम कर रहे हो। डोंट यू गेट टायर्ड ऑफ इट? तो क्लास में उसको बोलता है कि आई लाइक साउंड, मुझे साउंड अच्छा लगता है। So it seems the doctor went to the door, turned and said, well, I won't disturb you. Glad your throat's not worrying you anymore. But he kept standing there looking at the box, intrigued by the remarkable complexity of its inside. Curious to know what this strange patient of his was up to. What's it really for? He asked. You've made me inquisitive. So डॉक्टर बोलता है कि it seems that you are extremely interested. ठीक है। तो बोला कि ठीक है, मैं जाता हूँ। He went to the door, बोला कि I won't disturb you. I'm happy कि तुम्हारा गला तुमको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। बट वो दरवाजे के पास गया। He went to the door, but he did not go out. वो दरवाजे के बाहर नहीं गया। ठीक है। तो वो अच्छे से मशीन को देख रहा था कि अरे बोल दो, व्हाट इज दिस मशीन दैट यू हैव मेड। ठीक है। वो तो जानना चाहता था कि उसका क्यूरियस पेशेंट, जो स्ट्रेंज पेशेंट, जो ये जो क्यूरियस थिंग को जो बनाया है, व्हाट इज दिस। तो बोला कि टेल मी, यू हैव मेड मी इंक्विजिटिव, आई एम एक्सट्रीमली क्यूरियस टू नो व्हाट दिस थिंग इज। Klausner looked down at the box, then at the doctor, and he reached up and began gently to scratch the lobe of his right ear. There was a pause. The doctor stood by the door, waiting, smiling. तो क्लाउसनर जो है वो नीचे की तरफ देखा। He looked down at the box. ठीक है। फिर डॉक्टर की तरफ देखा। ठीक है। एंड देन ही रीच्ड अप। ठीक है। एंड आहिस्ते आहिस्ते करके हाथ बढ़ा के ऐसे करे, अपना कान का लोब को ऐसे करे खुजला रहा है कि क्या करे क्या करे, क्या बताए कि नहीं बताए, शुड आई टेल हिम, शुड आई नॉट टेल हिम। तो डॉक्टर वहां पे दरवाजे के वहां पे खड़ा था, स्माइल कर रहा था, वेट कर रहा था कि वो कुछ बोलेगा। ऑल राइट, आई विल टेल यू इफ यू आर इंटरेस्टेड। There was another pause, and the doctor could see that Klausner was having trouble about how to begin. तो बोला कि ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, इफ यू आर इंटरेस्टेड आई विल टेल यू। कुछ देर के लिए और रुक गया। ठीक है। क्लासरूम तो समझ नहीं पा रहा था। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड कि कहां से वो बोले, क्या बोले, कैसे करके डॉक्टर को समझाया नहीं समझाया, वो कुछ समझ नहीं आ रहा था उसको। He was shifting from one foot to the other, tugging at the lobe of his ears, looking at his feet, and then at last slowly he said, well, it's like this. The theory is very simple, really. The human ear, you know that it can't hear everything. There are sounds that are so low pitched or so high pitched that it can't hear them. तो वो वन फुट से दूसरा फुट में शिफ्ट कर रहा था, कान खुजला रहा था। He was looking here and there, वो सीधा खड़ा नहीं हो रहा था। He was struggling to find कि कैसे करके इसको समझाए इसको। ठीक है। तब जाके बोला कि well, it's something like this, it's very simple। कि then he started to explain कि humans can't hear everything ना। इंसान तो हर साउंड तो सुन नहीं सकता है। ठीक है। There are some high pitch sound, there are some low pitch sound। ठीक है। कुछ कुछ इंसान नहीं सुन सकते। Yes, the doctor said yes. Well, speaking very roughly, any note so high that it has more than 15,000 vibrations a second, we can't hear it. Dogs have better ears than us. You know, you can buy a whistle whose note is so high pitched that you can't hear it at all, but a dog can hear it. Yes, I've seen one, the doctor said. तो डॉक्टर बोलता है कि हाँ हाँ, यस यस। तो बोलता है, क्लासन कंटिन्यूज, बोलता है कि any sound which is higher than 15,000 vibrations a second, इंसान वो नहीं सुन पाएगा। ठीक है। डॉग्स का ईयर जो है वो ज्यादा बेटर है। ठीक है। वो ये भी बोलता है कि एक ऐसा विसल है जो इतना हाई पिच में बजता है, ओनली डॉग्स कैन हियर दैट विसल, और कोई सुन नहीं पाता है वो विसल को। ठीक है। तो डॉक्टर बोलता है कि यस, आई हैव सीन दैट।
Of course you have. And up the scale, higher than the note of that whistle, there is another note, a vibration if you like. But I prefer to think of it as a note. You can't hear that one either. And above that, there is another and another rising right up the scale forever and ever and ever. An endless succession of notes, an infinity of notes. There is a note if only our ears could hear it. So high that it vibrates 1,000,000 times a second, and another 1,000,000 times as high as that, and on, higher and higher as far as numbers go, which is infinity, eternity beyond the stars. तो क्लाउसनर जो है वो बोलता है कि of course you have seen it, of course you have heard about it, and 15,000 हर्ट्ज के ऊपर भी और अलग अलग स्केल्स है, उस विसल्स के से भी ऊपर और हाई वाइब्रेशंस का साउंड बज सकता है, ठीक है, उसके ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर, यू थिंक ऑफ इट एंड इट एग्जिस्ट्स। ये जो नोट जो है ये बहुत ऊपर 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 तक जा सकता है, इट इज एन एंडलेस सक्सेशन ऑफ नोट्स, ठीक है, इट वाइब्रेट्स 1,000,000 टाइम्स पर सेकेंड, और उससे भी मिलियन, 100 मिलियन बहुत है, टुवर्ड्स इंफिनिटी, इतना ज्यादा हाई साउंड हो सकता है, इट गोज बियॉन्ड द स्टार्स। तो देखो क्लाउसनर कितना ही ज्यादा मतलब कैसे करके उसको डिस्क्राइब कर रहा है। देयर इज एंडलेस पॉसिबिलिटीज, देयर आर एंडलेस अमाउंट ऑफ साउंड व्हिच कैन पॉसिबली बी हर्ड, जो सुनाई दे सकता है, जो हम लोग सुन नहीं सकते, बट देयर एग्जिस्ट, ऐसा एग्जिस्ट जरूर कर रहा है। इतना तक क्लियर सब लोगों को? पक्का क्लियर? जो लोग ऑनलाइन कर रहे हो उतना तक क्लियर आप लोगों को?